Hello students. So now today in this video we are going to start the next part of our NCERT solution, that is the chapter electricity, isn't it? In the last video we have seen the part 1 question numbers from 1 to 9 bachcho. Now in this video we are going to start the next question, that is question number 10. I hope so that you have gone through that video and you got some advantages from that. Might you have some of the students those who have gone through that. Please go through it and watch it. They are very important because from that you will get the maximum numbers, isn't it? Please try for it. So the next in this video बच्चों हम क्या करने वाले हैं कि जो आगे वाले जो क्वेश्चन है फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 10 वी आर गोइंग टू बी गेट द सॉल्यूशन ऑफ इट, isn't it? लेकिन बच्चों अगर आपको मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर आपको अच्छे नंबर्स लाना है फिजिक्स में, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशंस में हो चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो, तो आपको बस एक काम करना होगा बच्चों, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है ना? होप यू ऑल आर डूइंग वेल. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड द क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों? दैट हाउ मेनी 176 registers in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line. Correct? So this is the question. Let's get the solution of the question number 10. What exactly is the question, isn't it? As I already told you that पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन डेटा लिखना पड़ेगा बच्चों. तो लिखो तो क्या है गिवन डेटा? So first of all we will write it down what exactly is the given in a question, then we will move further, isn't it? बच्चों what is given? The resistance value is given, that R is equals to how much? 176 ohm. This much of the value of the resistance is given and we are supposed to be connect. These are the resistances, isn't it? In a circuit. And how they are going to be connected? They are supposed to going to be connected in what बच्चों? Parallel, right? अब इसको करंट कितना दिया हुआ है हमें? 5 एम्पियर, राइट? और जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो कितना है बच्चों? 220 वोल्ट. So what we are supposed to do is that how many number of resistors are supposed to be connected so that it carries 5 ampere of current, and at what line? On a 220 volt line. So this is a very simple question, isn't it? Let's get started now. Get the solution. So very simple बच्चों. तो क्या करना है हमें? R दिया हुआ है, we have I, we have a V, we wanted to be calculate the N. So the formula is very simple बच्चों. Parallel में अगर मानकर चलो अभी कोई resistance अगर connect करने वाले हैं which has the same value, that is 176. So what should be the formula? That in parallel. So बच्चों this is what the solution, right? So in parallel अगर हम connect करेंगे, so we know that Rp is equals to what बच्चों? R by N, right? We have a V, we have a I. So use according to the Ohm's law. What is the formula? That V is equals to what बच्चों? IR. Take the value of Rp, that is because we are connected all these resistances in a parallel, correct? So then V is equals to what बच्चों? Rp, but we know what is the value of Rp? R by N. So V is equals to what? R divided by what bachcho? N. So from that we can able to calculate simply what? The value of N. So therefore V is equals to, how we can able to write it down? Sorry, N is equals to, how we can write it down? That IR divided by what bachcho? V. So we have a I, we have a R, we have a V. So let's get started now. So N is equals to, what is the I is equals to 5 ampere. Resistance value is how much bachcho? 176. And the V value is how much? That is equals to what? 220. Clear? So just do the calculations. So what are the calculations are there? These are what? 5 fours and this is what the 5 fours are. Then 11 fours are what we can say? 44. And then 11 ones are 11, 6 are remaining, that is 11 6 are 66. So N is equals to how much butto? 16 by 4. 4 4s are 16 sir. So N is equals to what? 4. Exactly, this is what your answer. Which means that how many number of resistors should be connect in parallel so that it will carry a 5 ampere of current when it is on a 220 volt line. So then we are supposed to connect 4 resistor in series which has the value of equal to how much? 176, isn't it? कितने सीधे कितने सिंपल से एग्जांपल्स है बच्चों. बस आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों, प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस करो आप, है ना? प्रैक्टिस करो, बाकी कुछ करो या ना करो लेकिन प्रैक्टिस बिल्कुल करो आप, राइट? So this is the question number what बच्चों? 10, correct? Then we will move to the next question.
The next question is very simple बच्चों, because as we know very well, so these are the type of the questions only are there, and in your board examination also they will ask the same type of the question. Just think about it, how exactly you are going to get the solution of it, isn't it? So the next question is, show how you would connect 3 resistor, each of resistance 6 ohm, so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm. बच्चों हमें ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, शायद आपको अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11, इसमें क्या दिया है, हाउ यू विल कनेक्ट द रेजिस्टेंस, हाउ विल यू कनेक्ट द resistance so that what value you will get, you will get one value as a 9 ohm and the second value is what, 4 ohm. लेकिन जो आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, what is the value of each resistance, that is what, come on, that is what, how many, 6 ohm is the value is given. लेकिन कितने रजिस्टर्स है बच्चों, there are 3 रजिस्टर्स आर देयर, है ना, कितने रजिस्टर्स है, 3 रजिस्टर्स है, सबकी वैल्यू क्या है बच्चों, that is what, R1 कितना है 6 ओहम, R2 कितना है 6 ओहम, R3 कितना है 6 ओहम, बस. Correct. Now what we are supposed to do is that by just taking this resistances and by making their combination, we are supposed to get their equivalent as 9 ohm and the second one is what, 4 ohm. Correct बच्चों. अगर एक सिंपल सा है, let us go for the solution, isn't it? The solution is very important. बच्चों अब हमें क्या करना है, अरे यार हमें 9 ohm और 4 ohm आंसर लेना है ना, कैसे लाएंगे उसको. Now if suppose, imagine that if suppose I will connect all the resistances in series, what will happen, 6 plus 6 plus 6 18, possible hai? No. If I will connect all the resistance in parallel, so what will happen, 1 by 6 plus 1 by 6 plus 1 by 6, so what is the answer, 3 by 6, 3 to the 6, matlab how you are getting the answer, that RP is getting 2 ohm and series getting is what, 18 ohm, which is not possible because both the answers are not here, which means that there must be some different combination. What is the combination, you want to know, then just listen it. So then, so get the first one, that is what, the 9 ohm, the combination must be like that. What should be the combination bachcho, there are, correct, so 2 resistances are connected, should be the parallel, this is what, correct, and in series with this we are supposed to connect one resistance. So this is 6 ohm, this one is 6 ohm and this one is 6 ohm, है ना बच्चों. अब आंसर बनाओ, आप कैसे बनाओगे सर, बहुत ही सिंपल सा है, क्या, 1 by RP is equals to 1 by 6 plus 1 by 6 प्लस, पहले क्योंकि ये कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा ना हमें बच्चों, है ना. ये कौन सा कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्या है बच्चों, आपको सीरीज है. सो देन 1 by RP इज इक्वल टू, कितना आएगा ये, 2 by 6, 2 3 6, मतलब आंसर कितना आ रहा है 1 by 3. सो देयरफॉर RP इज इक्वल टू बच्चों आया कितना, 3 ओम. RP कितना है आपका, 3 ओम आया. अब आपका कॉम्बिनेशन कैसे बना, डायग्राम कैसे बनी, ये आपकी एक रजिस्टर बना और ये दूसरा रजिस्टर बना, इसका कॉम्बिनेशन कितना है बच्चों 3 ओम, ये कितना है 6 ओम. अब ये कैसे है, सीरीज में है सर, क्या बात है बच्चों. सो सीरीज फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, दैट RP करेक्ट प्लस व्हाट R3, दिस इज व्हाट, राइट, क्योंकि मैं इसको R3 कहूंगा, मैं इसको R1 कहूंगा, मैं इसको R2 कहूंगा. अब आया क्या आंसर, RS इज इक्वल टू, RP कितना है बच्चों 6, R3 कितना है 3, सो देन RS इज इक्वल टू कितना आया 9 ओम, इजंट इट. सो देन हाउ विल यू कनेक्ट दिस 3 रजिस्टर विच हैज अ 6 ओम वैल्यू टू गेट द 9 ओम, 2 registers in parallel and 1 resistor in series with them, so that will be your answer, right. So this should be the अरेंजमेंट. अब सेकंड को चलते हैं हम 4 ओम के लिए. सो बच्चों सेकंड को अगर हमें 4 ओम लेना है तो अलग कॉम्बिनेशन होता है. कैसे होता है मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप देख लीजिएगा, है ना. कैसे बच्चों, देयर इज सपोज दिस इज वन रजिस्टर इज कनेक्टेड लाइक दैट एंड अनदर रजिस्टर हैज टू बी कनेक्ट दिस वन, इजंट इट. सो लेट अस सपोज दिस इज व्हाट, द 6 ओम, दिस वन इज व्हाट 6 ओम. नाउ अनदर रजिस्टर इज कनेक्टेड लाइक दैट, डिंग 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 डिंग, ओहो लाइक दैट, है ना बच्चों, कितना आसान है ना. Correct. So this one is also how much, 6 ohm, right. So both are in series and this one is what bachcho, parallel with this. Let us suppose this one is what R1, this one is what R2 and this one is what R3. So R1 and R2 are connected in series and with them the R3 is connected in what, parallel. तो पहले हम इसका कॉम्बिनेशन निकालते, कितना आता है 12 आता है. ओहो क्या बात है बॉस, है ना. इसका कॉम्बिनेशन कितना है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 कितना 6 प्लस 6, हाँ
12 ओहम, है ना। अब ये कॉम्बिनेशन कैसे बना, ये आपका ऊपर का 6 ओहम बच्चों और ये नीचे का कितना 6 ओहम, है ना। ये कॉम्बिनेशन बना, ये बना आपका 6 ओहम और ये बना आपका 12 ओहम। अब कैसे ये पैरेलल में है तो मतलब क्या बना 1/Rp इज इक्वल टू, ये बच्चों आपका क्या है Rs है ना, सो 1/Rs प्लस 1/R3। सो कितना आएगा आंसर ये, सो 1/Rp इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6। तो अब क्या करोगे इसको, आप इसको मल्टीप्लाई करो, दैट इज व्हाट 1/Rp इज इक्वल टू, अगर आई एम राइटिंग दिस टू दिस हियर, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करो इसको, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 करो, मतलब कितना होगा ये 12 होगा, डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा इसका 1/12 प्लस 2/12, राइट। तो कितना है आंसर 1/Rp इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 12, 3 4 जा 12 है ना बच्चों। तो कितना आएगा आंसर 1/Rp इज इक्वल टू 1/4, देयरफॉर Rp इज इक्वल टू व्हाट, हाँ 4 ओहम। दिस इज योर आंसर बच्चों, isn't it? So how you are supposed to connect all these resistances, isn't it? So to get the 9 ohm you are supposed to connect two resistances in series, with one is two are in parallel and with them one is in series. And how you are supposed to connect another to get the 4 ohm, two are in series and one is with the parallel with them. So this will be your question number what bachcho 11, isn't it? Hope you are understanding this. Now we will move to the next question. The next question is very simple. That is question number 12. What is the question? Several electric bulbs. बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करना ना बहुत सिंपल होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह सॉल्व करते हो, है ना। अगर आपको क्वेश्चन आसानी से आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहे तो उसको क्या करना पड़ेगा कि आप उसके फॉर्मूले देखो, आप उसके कंसेप्ट पढ़ो, फिर भी नहीं आ रहे तो फिर आपको थोड़ा सा और उसके ऊपर क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है ना सर। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बच्चों कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वैट, मतलब पावर दिया हुआ है। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इज द मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पियर। सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है कि मानकर चलो बहुत सारे बल्ब जो है हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है ताकि वो कितना करंट बियर करे 5 एम्पियर। वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस को उसको लगाया गया है 220 वोल्ट को, है ना। तो हमें नंबर ऑफ बल्ब्स पैरेलल में कनेक्ट कितने किए जाएंगे वो हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम लिखते हैं ना गिवन डेटा, तो कैसे लिखेंगे रे बाबा, बहुत सिंपल सा है, कैसे लिखेंगे बच्चों V इज गिवन दैट इज 220 वोल्ट, है ना, एंड मैक्सिमम अलाउबल करंट इज व्हाट बच्चों 5 एम्पियर, पावर इज आल्सो गिवन हाउ मच 10 वैट, राइट। यस सर, एब्सोल्युटली राइट सर, इजंट इट। नाउ वी वांटेड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ बल्ब्स, राइट, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, इन ब्रैकेट में लिखता हूं n निकालना है हमें, राइट बच्चों। Now here simple, I just wanted to tell you one thing is that अगर मानकर चलो बहुत सारे बल्ब है ना, बहुत सारे बल्ब ऐसे लाइट, बहुत सारे बल्ब्स क्या किए हैं पैरेलल में कनेक्ट किए, शायद पता नहीं कितने भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं बल्ब, है ना, बहुत सारे बल्ब्स यहाँ पर कनेक्ट किए गए। बच्चों इफ आई कैलकुलेट द पैरेलल रेजिस्टेंस दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ देम, सो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस देन, द रेजिस्टेंस विल बी व्हाट, हाँ वन बल्ब सपोज आई विल कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस, इट विल बिकम Rp, और इसके थ्रू जो करंट जाएगा वो बच्चों क्या है I है। So can I use the power formula as here using, now I am giving you the solution, नंबर लाने ना अच्छे एग्जाम में तो देखना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे, यूज द फॉर्मूला पावर, P इज इक्वल टू बच्चों I स्क्वेयर R, राइट। लेकिन ऑल दिस आर कनेक्टेड इन व्हाट पैरेलल, सो कैन आई यूज दिस P इज इक्वल टू I स्क्वेयर RP, नो डाउट। और हमें सबको पता है कि जो बल्ब्स दिए गए हैं उन बल्ब्स का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। अगर वो सेम है सो व्हाट शुड बी द Rp, देन Rp इज इक्वल टू बच्चों R बाय n। कैन आई टेक दिस वैल्यू एंड सब्स्टिट्यूट हियर, यस सर, व्हाई नॉट। सो देन P इज इक्वल टू व्हाट I स्क्वायर इनटू व्हाट बच्चों R बाय n, राइट। सो देन कैन आई टेक n टू दिस साइड, सो n बिकम्स हियर, देन I स्क्वायर R डिवाइडेड बाय व्हाट P, isn't it? We have I, we have a P, we don't have a R, but we know according to the Ohm's law we can write it down the formula of R what, R is equals to what बच्चों V divided by what, I,
करेक्ट. सो टेक दिस फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट हियर. सो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू वी डिवाइडेड बाय I इंटू वट पी, क्योंकि v बाय I मतलब r की वैल्यू अगर मैं रख दूं तो v ऊपर चला जाएगा और I नीचे चला जाएगा, है ना. तो वन आई डिश क्या हो, है ना. तो क्या बचे यहाँ पर n इज इक्वल्स टू वट IV डिवाइडेड बाय वट बच्चों p. n इज इक्वल्स टू वट IV डिवाइडेड बाय p. अब वैल्यूज रखो और आंसर निकालो. हाँ, किसको देख रहे हो आप. सो देन कैलकुलेट इट. सो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा, I कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है सर, V कितना दिया हुआ है 220 डिवाइडेड बाय P कितना हुआ दिया हुआ है 10, है ना. 0 0 कैंसल हो. सो देन कितना है आंसर, n इज इक्वल्स टू 5 इंटू 22. अरे बाबा फिर से मल्टीप्लीकेशन बहुत मुश्किल है. 5 2 10 ला 0 रिमाइंडर इज 1 5 2 1 11. तो कितने बल्ब्स कनेक्ट करने चाहिए बच्चों हमें, तो वो कितना करंट बियर करेगा 5 एम्पियर. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ bulbs are should be connected in parallel, that is 110 bulbs are should be connected. Is it clear? So बहुत सिंपल है, बस आपको सोचना है कि उस एग्जाम्पल को, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. सो व्हाट आई हैव डन इन दैट केस, I just went through the question and then I came to know that what exactly the values are given, and as per the given values I just calculated the answer. That's it. बस आपको कुछ आपको रिलेशंस थोड़े से इधर के उधर करने पड़ेंगे. बस जब आप प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, यू विल गेट ऑटोमेटिकली, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल. आप किसी भी सवाल का जवाब ढूंढ सकते हो जब आप अच्छी तरह से उसको पढ़ोगे, उसके बेसिक्स क्लियर करोगे, उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, उसके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो अपने आप बाकी के जो भी क्वेश्चंस होंगे, उसके जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो अपने आप आएंगे आपको. ठीक है बच्चों, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है जितनी बात हम कर सकते उतनी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों आपके पास भी समय नहीं है और हमारे पास तो समय ही समय है ना. तो चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन नंबर व्हाट बच्चों 13, है ना. व्हाट द क्वेश्चन नंबर 13 नाउ. ए हॉट प्लेट of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately, in series or in parallel. What are the currents in the three cases? बच्चों हमें क्या दिया हुआ है पता है आपको, कि हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दो कॉइल्स है और हमें तीन केसेस में उनके थ्रू जो करंट होगा वो निकालना है. That's it. So let's do it now. First of all, what? Given a data. What exactly has given? Let us go for this. Correct. So V is given. How much is the V? 220 volt. है ना. How much is the resistance? Resistance is given बच्चों how much? 24 ohm. Correct. अब निकालना क्या है हमें? I निकालना है कब? First case में when they are separately connected. Right. Second when they are in series. And the third when they are connected in what बच्चों parallel. So in three cases we are supposed to be calculate the current through them. Correct. दो कॉइल्स है, कितने कॉइल्स है? दो कॉइल्स, और दोनों कॉइल्स का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है बच्चों? सेम है. अगर सेम है तो उसके थ्रू जो करंट होगा सेपरेटली तो वो क्या होगा? सेम होगा. बस एक की निकालो, अपने आप दूसरे की मिल जाएगी. Isn't it? Let's get ready for the solution. What is the solution बच्चों? We know very well what is given. First of all first of all calculate the first case. दैट इज सेपरेटली, है ना. सेपरेटली, अगर सेपरेटली निकालना है यूज द फॉर्मूला V इज इक्वल टू व्हाट IR. करेक्ट. तो हमें निकालना क्या है बच्चों? I निकालना है. सो I इज इक्वल टू व्हाट V बाय R. अब यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा आपका I इज इक्वल टू V बाय R बना, वैल्यूज रख दो उसमें. सो I इज इक्वल टू कितना है आपका? V कितना है? 220 है ना. 220 डिवाइडेड बाय कितना है बच्चों? ये 24 है. बस अब थोड़ा सा ये कर लो. सो कितना आएगा? ये 12 और ये बना 11, तो फिर से कितना बनेगा आपका? ये 110 बना है ना. सो कितना बनता है? 6 2 नहीं करेंगे इसको ना, 2 6 करेंगे, फिर से कितना होगा? 5. सो मतलब बना कितना बच्चों? 55/6 एम्पियर बना. कितना बना? 55/6 एम्पियर. इसको अगर आप फ्रैक्शन में निकालोगे तो यू कैन डू इट, इजंट इट. सो द करंट थ्रू कॉइल ए, अगर कॉइल ए में से अगर करंट कितना है बच्चों? 55/6 है, तो कॉइल बी में से भी कितना रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस भी सेम है. सो देन I इज इक्वल टू बच्चों 55/6 एम्पियर. करेक्ट.
अब हम निकलेंगे सेकंड के लिए, सेकंड केस है जो कि है सीरीज की, है ना। तो सीरीज पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, दो कॉइल्स है ना, तो क्या होगा आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो कितना होगा बच्चों 24 प्लस 24 कितना है 48 ओम बना। सो देन फिर से V इज इक्वल टू आई आर यस होगा इस बार, करेक्ट। सो क्या बना ये आर एस इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय आई, V तो अपना 220 ही है, सो 220 डिवाइडेड बाय 48, 220 डिवाइडेड बाय 48। अगर ये बच्चों अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो वहाँ पर 24 था, यहाँ पर कितना है 48 है, सो व्हाट शुड बी द आंसर नाउ, सो आई थिंक सो दैट विल गेट द कितना होगा, तो बनाओ ये 24 बनाओ, ये कितना होगा 110 बनाओ, तो इसके फिर से कितना होगा ये 12 होगा, तो ये कितना होगा 55 होगा, है ना। सो आंसर विल बी व्हाट 55 डिवाइडेड बाय 12 एम्पियर, करेक्ट। इन सीरीज का कितना आंसर है बच्चों, दैट इज जो आपका करंट है, सॉरी करंट ये करंट है, सॉरी हाँ ये क्या है बच्चों, आई एम वेरी सॉरी, ये करंट है। सो क्या होगा ये आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर एस, तो कितना आंसर आपका 55 डिवाइडेड बाय 12 एम्पियर, दिस विल बी इन सीरीज। अब जो थर्ड केस होगी दैट इज कॉल्ड एज इन पैरेलल, जब वो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कितना आएगा आंसर आपका, है ना। पहले 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/24 कितना इतना है बच्चों ये 2/24, 12 टू ज 24 मतलब 1/12। तो इसका मतलब कि आपकी जो आर पी की वैल्यू आई है बच्चों कितनी आई है 12 ओम आई है। हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ आर पी 12 ओम आई है। सो देन फ्रॉम दैट वी कैन कैलकुलेट सिंपली नाउ, क्या निकालना है हमें आई निकालना है, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर पी। सो आई इज इक्वल टू वी कितना है बच्चों दैट 220 डिवाइडेड बाय आर पी कितना है बच्चों 12 है ना, 2 6 जा और ये 110 बना, और फिर से अगर निकालेंगे हम इसको 55 बनेगा और ये 3 बनेगा, मतलब कितना है बच्चों 55/3 एम्पियर। सो दिस विल बी द आंसर्स, करेक्ट। सो दिस आर द आंसर्स। तो ये हमें मिला कितना, देखो जब सेपरेटली निकालेंगे हमने व्हेन वी हैव कैलकुलेटेड द आंसर सेपरेटली थ्रू ईच एंड एवरी कॉइल, सो वी गॉट द 55/6। when they are connected in series 55/12, when they are connected in parallel 55/3. so these are the answers. Okay, so hope you have understood this. Let's move for the next question. The question number is what bachcho 14. The questions are very simple, just you are supposed to do the little practice on that. फॉर्मूलेज, अगर किसी को फॉर्मूलेज याद नहीं आ रहे बच्चों तो आप जाकर वो मेरा वीडियो देख सकते हो, जिसकी मैंने पूरे इंपॉर्टेंट जो भी फॉर्मूलेज हैं वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज मैंने वहाँ पर दे चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। और पिछला भी जो भी वीडियो होगा पार्ट 1 हमारा, जहाँ पर मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक का जो सोल्यूशन दिया है वो भी जाकर आप जरूर देख लेना, ठीक है। सो देन क्वेश्चन नंबर इज व्हाट नाउ 14. व्हाट द क्वेश्चन नंबर 14 सेज दैट compare the power used in the 2 ohm resistor in each of the following circuit. ये क्वेश्चन नंबर हमारा होगा बच्चों 14, करेक्ट। क्या है, फर्स्ट केस है a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistors. Second, a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistors. बच्चों we are supposed to be compare the powers through a resistance of 2 ohm resistor, जबकि वो एक बार किस में कनेक्ट कर दिया गया 6 वोल्ट बैटरी को, जब वहां पर रेजिस्टेंस कितने थे 1 ओम एंड 2 ओम। और सेकंड केस में जबकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 4 वोल्ट और वहां पर रेजिस्टेंस दिए गए हैं 12 ओम और 2 ओम, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर इट। तो पहले हम क्या करते हैं कि गिवन डेटा लिखते हैं ना, गिवन डेटा, करेक्ट। यहां पर 2 केसेस है, ठीक है बच्चों। केस 1 में क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है हमें 6 वोल्ट और R1 दिया हुआ है 1 ओम और R2 दिया हुआ है 2 ओम, राइट। और इन सेकंड केस व्हाट दे हैव गिवन, दे हैव गिवन द V इज इक्वल टू 4 वोल्ट एंड R1 इज इक्वल टू हाउ मच बच्चों 12 ओम एंड R2 इज गिवन 2 ओम। हमें पावर किस में कंपेयर करना है पता है आपको इन दोनों केस में, इस रेजिस्टेंस के थ्रू, करेक्ट। तो ये किस में कनेक्ट किया गया है बच्चों, ये है सीरीज में एंड दिस वन इज इन व्हाट पैरेलल। अब आप सबको पता है when the resistances are connected in series what is common बच्चों current, and when the resistances are connected in parallel what is common बच्चों potential। तो हमारे पास potential है सीरीज में, बस हमें क्या निकालना है करंट निकालना है, that's it। निकालो फिर यहाँ पर पहले सॉल्यूशन क्या होता है, पहले हम P1 के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, let us suppose here RS is equals to R1 plus R2
and RS is equals to 1 plus 2, which becomes how much बच्चों? 3 ohm, right? 3 ohm, isn't it? So we got the RS. So what is the formula of V? That V is equals to what? IR. I is equals to what बच्चों? V divided by R. V कितना है? 6 और R कितना आया हमारा आंसर? 3. 3 2 6, मतलब करंट कितना आया है हमारा? 2 एम्पियर. So through that resistance, how much amount of the current is going to be flow? 2 ampere is the current is flowing. Now how we'll calculate the power? तो पावर का फॉर्मूला तो हमको पता है. क्या है सर? क्या है सर पावर का फॉर्मूला? देन P इज इक्वल टू बच्चों I स्क्वेयर R. करेक्ट. केस ये के लिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ. ठीक है, चलो ठीक है बनाओ. P इज इक्वल टू I हमने अभी निकाला कितना है? 2 स्क्वेयर इंटू R कौन सा लोगे? थ्रू 2 ओम हमें निकालना है तो हम 2 ही लेंगे. ठीक है, सो दैट इज विल बी व्हाट 2. सो P इज इक्वल टू बच्चों 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट 8 वैट. लेट अस सपोज दिस P1 कितना है बच्चों? 8 वैट है. समझ में आ रहा है ना? हमें कंपेयर करना है. हाँ डिंग डिंग. ठीक है. नेक्स्ट वन इन केस B. करेक्ट. लेट्स गो फॉर दिस. अब हमें यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है बच्चों, क्यों? V है और ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है. हमें पता है जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं तो उनके अक्रॉस का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? कॉमन होता है. सो दैट P2 इज इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R. R कौन सा लेंगे बच्चों हम? दैट इज व्हाट द 2 है ना. सो यहाँ पर मैं R2 लेता हूँ. ठीक है, यहाँ पर मैं क्या ले लूंगा? R2 लूंगा क्योंकि R2 इज इक्वल्स टू व्हाट 2 ओम है. ठीक है, सो देन P2 इज इक्वल्स टू V स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय बच्चों R2 है, R स्क्वायर नहीं है. ठीक है, तो ये कितना है बच्चों? 2. सो P2 इज इक्वल्स टू 16 बाई 2. 2 8 6 अगेन 8 वैट. सो P2 इज इक्वल टू बच्चों 8 वैट. व्हाट डू वी ऑब्जर्व? What do we observe? We observe that in both the cases the power is what? Through 2 ohm resistor is what बच्चों? Same. That will be how much? 8 watt. Clear? Very good. The next question of our NCERT solution of chapter electricity is simple तो है, लेकिन वो कब सिंपल होगा ये आपको उसका मंत्र तो पता है बच्चों कि जब आप क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ, प्रैक्टिस करोगे है ना. लेट्स गो फॉर इट. क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 15? 2 lamps, one rated 100 watt at 220 volt and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What currents is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? तो बच्चों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है ना. तो पहले हम क्या दिया हुआ है ये लिख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 15 isn't it? Let us write it down. What? Given data. बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो पहले क्या है? 2 लैम्प्स है. लेट अस सपोज फर्स्ट लैम्प है ना. फर्स्ट लैम्प हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे. क्या है? फर्स्ट लैम्प है ना बच्चों. तो फर्स्ट लैम्प में क्या दिया हुआ है हमें? पावर कितना है? P1 इज इक्वल टू 100 वैट. करेक्ट. एंड V इज इक्वल टू व्हाट? 220 वोल्ट. सिमिलरली इन द सेकंड लैम्प क्या दिया हुआ है ये भी लिखना पड़ेगा हमें. क्या दिया है सेकंड लैम्प में? दिया है पावर दैट इज P2 इज इक्वल टू हाउ मच? 60 वैट एंड पोटेंशियल इज व्हाट बच्चों? दैट इज व्हाट? 220 वोल्ट. करेक्ट. बस हमें करंट निकालना है, इजंट इट? अब करंट निकालेंगे कैसे? तो निकालेंगे ना हम, क्यों? क्या प्रॉब्लम है? सो लेट्स गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस. सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा बच्चों. जस्ट हैव अ कंसंट्रेशन, राइट? सो लेट अस सपोज दिस वन इज द V1, लेट अस सपोज दिस वन इज व्हाट बच्चों? V2. क्या फॉर्मूला है हमारा पावर का? क्या है फॉर्मूला? P इज इक्वल्स टू VI. करेक्ट. P1 V1 I1. I1 निकालो. I1 इज इक्वल्स टू बच्चों P1 डिवाइडेड बाय V1. करेक्ट. व्हाट आर द वैल्यूज? P1 कितना है? 100 और ये कितना है बच्चों? 220. राइट ना. 0 0 कैंसल. 2 5 एंड दिस इज व्हाट? 11. मतलब कितना है I1 हमारा? अरे I1 कितना आया बच्चों? 5/11 एम्पियर आया. करेक्ट. सिमिलरली हम यहां पर निकालेंगे क्या? हाँ, P2 इज इक्वल टू V2 I2. I2 निकालो पहले. सो I2 इज इक्वल टू बच्चों P2 डिवाइडेड बाय V2. सो देन दिस I2 बिकम्स इक्वल टू P2 कितना है? 60 है और V2 कितना है बच्चों? 220 है. इसको कैंसिल करो, ये 3 होगा 1 1. सो I2 कितना आया बच्चों आपका? 3/11 एम्पियर. हमें टोटल करंट निकालना है. सो बच्चों व्हाट विल बी द टोटल करंट? The total current will be what? I1 plus what? I2. So can I write it down? Therefore, total current क्या होगा? Total current through the circuit I is equals to what? I1 plus I2. बच्चों I1 कितना है आपका?
5/11 एंड I2 कितना है 3/11, कितना है आंसर, कम ऑन, 5 + 3 8 / 11 एम्पियर. सो दिस विल बी योर आंसर. करेक्ट. बस अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप उसको थोड़ा सा पहले प्रॉब्लम्स को पढ़ो, उसको समझो कि वो क्या कह रहा है, उसके बाद उस सॉल्यूशन की तरफ जाओ. राइट बच्चों. सो दिस देन ऑटोमेटिकली द प्रॉब्लम विल बिकम अ वेरी सिंपल फॉर यू एंड इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर यू. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इट्स वेरी गुड. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज व्हाट द क्या कहता है देखते हैं. विच यूजेस मोर एनर्जी, विच यूजेस मोर एनर्जी, है ना, a 250 watt TV set in 1 hour or a 120 watt toaster in 10 minutes. ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 16 है. सो व्हाट विल बी द क्वेश्चन नंबर 16? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना. विच यूजेस मोर एनर्जी, अ 250 watt TV set in 1 hour or a 120 watt टोस्टर इन 10 minutes. नॉट 120, सॉरी 1200 watt, है ना बच्चों. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन द गिवन. व्हाट एग्जैक्टली इज द गिवन? आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स द गिवन डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. तो पहले लिखते हैं कि पावर दिया हुआ है. फर्स्ट केस में पावर कितना दिया है, दैट इज P1 लिखते हैं हम 250 watt और टाइम दिया हुआ है T1 कितना है 1 hour, राइट. और इन द सेकंड केस they have given us the P2 how much बच्चों 1200 watt and they have given us the T2 that is equals to how much 10 minutes. Let us calculate which will consumes the more energy. This is the question. पहले आपको इसको सेकंड में करना पड़ेगा क्योंकि SI यूनिट में ना. सो T1 is equals to 1 into what बच्चों 60, that equal to 60 सेकंड. और यहाँ पर क्या होगा 1 hour मिनट इंटू सेकंड. कैसे हो रहा है आज 1 into 60 into what बच्चों 60. So T1 will become how much? 3600 सेकंड. आया ना, वेरी गुड. और T2 is equals to 10 into 60, हाँ how much 600 सेकंड, राइट बच्चों. फाइंड इट आउट नाउ. व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या निकालना है हमें? एनर्जी निकालना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड द सॉल्यूशन. एनर्जी कितनी होगी? E1 is equals to what? Come on, P1 into what? T1. So E1 is equals to P1 कितना है बच्चों इसका 250 into what 3600, राइट ना. सो कैलकुलेट इट. अब कैसे कैलकुलेट करें सर? 25 into 36 कितना आता है? ये 0 3, राइट. 6 to 12 and 3 15 plus 5 15 1 6 and 1 7. तो कितना आया 0 0 and 9 900 आया बच्चों. किसका मल्टीप्लीकेशन? 25 into 3600 और ये 0, राइट. तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आया 900 और ये 3 zeros 1 2 3, करेक्ट. सो दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ व्हाट जूल. मैं इसको पावर में लिख दे देता हूँ. क्या आएगा आंसर? 9 into कितने 1 2 3 4 5 10 to the power of 5 जूल, इजंट इट. सो दिस विल बी योर E1. मतलब कि कितना पावर टीवी ले रहा है, दैट विल कितनी एनर्जी, सॉरी कितनी एनर्जी बच्चों उसमें 9 into 10 to the power of 5 जूल. लेट्स कैलकुलेट फॉर द E2 also. So here what will be the solution? That E2 is equals to, come on, P2 into what? T2. ओए. So then E2 is equals to P2 कितना आता है बच्चों 1200 into what? 600, right. 12 6 अभी आता है मेरे को कितना 72. So then this is 72, ये 2 और ये 2 कितना 1 2 3 4, ये किस में जूल में होगा, है ना. So I will write it down in power 1 2 3 4, है ना, 10 to the power of 4 joule. But this answer is in terms of what 5. This answer should be written in terms of the 5. So then only we can able to compare it. So कैसे लिखेंगे? So E2 is equals to that 7.2 into 10 to the power of क्या होगा? Come on, that is 5 joule. क्यों? एक पॉइंट्स मैंने इधर लिया बच्चों तो एक पावर यहाँ पर बढ़ गया, है ना. सो देन दिस इज द एनर्जी थ्रू द टोस्टर. सो विच हैज मोर एनर्जी? 9. पावर तो सेम है, उसको छोड़ दो. 9 और 7.2, कमन 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 9. सो देन therefore we can write it down. E1 is greater than what बच्चों? E2. That's it. Isn't it? Hope this is very much clear to everyone. बच्चों आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे, आपको सवाल बनाने होंगे.
क्लियर? तभी आपको बाकी के सभी चीजें आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना बच्चों? लेट्स गेट स्टार्टेड डूइंग द नेक्स्ट प्रॉब्लम। कितना क्या नंबर होगा उसका? 17 नंबर होगा। फेवरेट है आपका? क्या बात कर रहे हो सर, क्यों फेवरेट है बच्चों, क्यों फेवरेट है? इजंट इट? बिकॉज इट लाइज इन, कहाँ पर लाता है ये? कैलेंडर में, हर महीने में आता है। छोड़ दो, बेकार की बात है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओहम ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स 2 hours. Calculate the rate at which the heat is developed in the heater. बच्चों सवाल थोड़ा सा समझ लो आप पहले ना कि क्या करना है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि what exactly the rate of heat developed in that time. That exactly is the question. I will tell you what is, isn't it? First of all, write it down. What? Given data. क्या है? Given data लिखना पड़ेगा। क्या दिया है हमें? चलो लिखते हैं पहले। क्या है, क्या है, क्या है ना? That resistance is given 8 ohm, current is 15 ampere, time is what बच्चों? 2 hour. Now what we are supposed to be calculate? The rate at which heat is developed, isn't it? So which formula? Joule's law of heating effect. क्या कहता है वो? क्या कहते हैं जूल्स जी? कहते हैं heat develop is directly proportional to the square of the current, is directly proportional to the resistance, is directly proportional to the time taken by the heat to flow from one point to the other point. Correct? So then use that formula. Let's write it down the solution here. H is equals to बच्चों I square RT. लेकिन हमें हीट निकालनी है क्या? ना, हमें रेट ऑफ हीट डेवलप। अब रेट कैसे निकालेंगे? शायद आपने देखे होंगे स्टेटमेंट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। क्या कहा था हमने? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट में भी हमने क्या देखा था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेट का मतलब क्या होता है? समथिंग डिवाइडेड बाय टी, डिवाइडेड बाय टी। ओहो, तो कैसे करेंगे यहाँ पर? सो बच्चों यहाँ पर जो हीट, रेट ऑफ हीट होती है, दैट एच डिवाइडेड बाय टी को कहा गया रेट ऑफ हीट डेवलप्ड, है ना? दिस इज योर फॉर्मूला। अभी कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा सर, एच डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू व्हाट? कम ऑन, आई स्क्वेयर आर। We know R. Substitute the values. So then H is equals to I square कितना है बच्चों? 15 square. Correct? और resistance 8 ohm है. Can we calculate it? 15 square. I know. How much? That is 225 into what बच्चों? 8. करो कैलकुलेशन अब। करेंगे ना सर? बिल्कुल करेंगे। कितना आता है? 8 5 40। अरे बाबा नो, ऐसे करेंगे ना इसको सीधा, है ना? 0 4 16 4 20 0 2 16 2 18, है ना? तो कितना है आंसर? 1800। दैट इज व्हाट h बाई टी बच्चों, h बाय टी कितना है? 1800 जूल पर सेकंड। दिस इज व्हाट द रेट ऑफ हीट डेवलप्ड देयर फॉर व्हाट टाइम? फॉर 2 hours. करेक्ट बच्चों? दैट इज व्हाट द रेट ऑफ, यहां पर अगर यूनिट भी देखोगे तो कितना है? जूल पर सेकंड। तो 2 घंटे के लिए कितनी एनर्जी वहां पर हीट एनर्जी डेवलप हो रही है ना? 1800. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ योर NCERT चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन 9 question and in this part we have seen I think 8 questions, something like that, isn't it? Hope this is very much clear to everyone, isn't it? If a single student is going to benefit from it, that's what I feel, isn't it bachcho? If you have any problem, please do comments over there. If you have any problem related to any of the questions, you can mention in comment. Even you can shoot a mail to me, isn't it bachcho? That's it. Thank you so much. Take care.